Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing part 3. This is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, we have already completed chapter 1 in this book. Let's come to chapter 2 and the name of the chapter is Windows 10. The operating system is a software that tells a computer how to work. In the previous class, in the previous chapter, we have learned about this कि operating system computer को बताता है कि कैसे काम करना है. It controls the work of different hardware devices attached to the computer and also keeps the record of all the program onto which you work. So जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी ये रखता है. Microsoft Windows, Linux, Macintosh OS are some of the examples of operating system. Microsoft Windows is the most popularly used operating system. So सबसे ज़्यादा जो operating system use किया जाता है उसका नाम है Microsoft Windows. सबसे ज़्यादा use होने वाला operating system है ये. In this chapter we are going to learn about Windows 10, task view and control buttons. So let's start with the chapter, children. So now, an operating system in your computer takes care of your computer. It manages everything and makes all the software work. So operating system क्या करता है? सब चीजों को मैनेज करता है. कंप्यूटर को क्या काम करना है, नहीं करना, उन सब चीजों को मैनेज करता है. Windows is an operating system. Let's learn about Windows in detail. So Windows भी एक operating system है और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Windows makes sure that your computer system is working smoothly without any problem. So विंडो का क्या काम है? वो ये श्योर करता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं. There have been many versions of Windows since Microsoft first released it in 1985. So Microsoft में पहली बार जो है विंडोज को रिलीज किया था 1985 में. The most popular ones are Windows 7, Windows 8, Windows 10 and Windows 11. So जो पॉपुलर विंडो के वर्जन थे वो थे 7, 8, 10 and 11. Windows 11 was released on 5th October 2021. So 2021 के 5th October को Windows 11 को रिलीज किया गया था. In this chapter we will go on a journey to know more about Windows 10 operating system. But in this chapter we are going to learn about Windows 10 operating system. Introduction to Windows 10. MS Windows means Microsoft Windows is the most commonly used operating system. बहुत ज़्यादा यूज होने वाला operating system है. क्यों है? Let's read. It is a GUI based operating system. ये GUI based operating system means graphical user interface operating system है. यहाँ पे graphics पे काम करते हैं. User interface मतलब हम users से easily use कर सकते हैं, इसलिए से GUI क्या कहा जाता है? As graphics are used in this to communicate with the computer. So computer से बात करने के लिए graphics का use होता है. That's why it is called graphical user interface. It uses WYSIWYG, which means what you see is what you get. That is what is appear on the screen will be the same as the output. So means मैंने कुछ इनपुट दिया कंप्यूटर को, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है. तो जब मैं उस आउटपुट का प्रिंट आउट निकालूंगी तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है वही सेम चीज मेरे प्रिंट आउट में भी होगा. So this is what you see is what you get. It helps us to do many things at a time. So Windows 10 हमें जो है एक साथ कई चीजें करने का टाइम देता है. It is very user friendly, that is easy to learn and use. यूजर फ्रेंडली है जिसे हम आसानी से लर्न कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. Now let's come to the features of Windows 10. Windows 10 के features क्या क्या हैं? Let's read it. The start menu was removed from the desktop of Windows 8 is back in Windows 10. So Windows 8 जब आया था तो उसमें से स्टार्ट मेन्यू जो है हटा दिया गया था डेस्कटॉप में से, लेकिन 2010 में इसे वापस ला दिया गया है. It includes the base features of Windows 7 and Windows 8. तो Windows 7 और 8 के जो बेस्ट फीचर्स थे, जो अच्छे फीचर्स थे, वो मिला जुला के Windows 10 में डाल दिए गए. Windows 10 comes with a great built-in store, helps you stay in touch with
has many apps, games and entertainment than ever before and many are free. So Windows 10 में बहुत सारी built in चीजें हैं, इसमें apps हैं, इसमें बहुत सारे songs हैं, games हैं, entertainment के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें से काफी सारी चीजें फ्री भी हैं, तो हम इन सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं विंडोज 10 में जो पहले नहीं था. इट इज मोर इंटरेस्टिंग एंड हैज मेनी न्यू थीम्स, आइकन्स एंड पिक्चर. सो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के थीम, आइकन या पिक्चर्स भी हैं. इट हैज अ न्यू सर्च टूल कॉल्ड Cortana. इट कैन हेल्प यू फाइंड थिंग्स एंड गेट थिंग्स डन इजीली. द इंफॉर्मेशन कैन बी सर्च बाय टॉकिंग टू Cortana. सो एक नया फीचर है इसमें, जैसे हम Amazon में Alexa को यूज करते हैं फॉर टॉकिंग और फॉर शेड्यूलिंग समथिंग, ऐसी विंडोज 10 में हम Cortana नाम का एक सर्च टूल यूज करते हैं, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं विंडोज से रिलेटेड, और वो हमें उसके बारे में सर्च करके बता सकती है. Windows 10 has a task view button on the right side of the search button. It will show you all the open windows on the desktop. So desktop पे हम कई सारे विंडो खोलते हैं, वो सारे विंडो हमें कहाँ दिखाई देंगे, हमें टास्क व्यू बटन के अंदर दिखाई देंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू फीचर, और ये कहाँ पे है, सर्च बटन के जस्ट बगल में, मीन्स राइट साइड में. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंडोज 10. Now let's learn how can we start Windows 10. कैसे स्टार्ट करना है? Here you can see there are two screens in front of us. Let's read about them. As we switch on your computer, जैसे हम switch on करते हैं कंप्यूटर को, the Windows operating system gets loaded into the memory automatically. So जैसे मैंने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया, CPU का स्विच ऑन किया, तो जो विंडोज है वो अपने आप को लोड करना शुरू कर देगा. आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट्स बने हैं, जिसका मतलब विंडो जो है, विंडो का आइकन आ गया है, विंडो अपने आप को लोड कर रहा है. While loading, the picture of window flag appears on the screen and after few seconds the screen appears. So जब लोड करता है तो विंडो का फ्लैग हमारे सामने आ गया है, और जब ये लोड हो गया तो ये स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो we can sign in from here. In the same way, a computer checks if you have permission to use a computer or not. The computer compares the username entered by you with the name of the user that have been stored in it. So हम जो भी यूजर नेम है, अगर उससे हमारा यूजर नेम नहीं मैच होगा तो कंप्यूटर विल नॉट ओपन. सो कंप्यूटर क्या करता है, कंपेयर करता है हमारे यूजर नेम को सेव यूजर नेम से. सो आफ्टर दैट वेलकम स्क्रीन, जब हमने उसमें पासवर्ड डाल दिया, यूजर नेम में हमने जब पासवर्ड को एंटर किया तो क्या हुआ, after entering the correct username and password, welcome screen appears and the welcome message you will see the screen desktop given below. So welcome message के बाद हमें ये desktop दिखाई देगा जो हमारे फ्रंट में. This is the first page of your screen and it is a desktop. अब desktop पे हम देख सकते हैं नीचे एक लाइन है, that is called a taskbar, और साइड में लेफ्ट साइड में कुछ पिक्चर्स बनी हैं, इन्हें हम आइकन्स कहते हैं. और ये ब्लू स्क्रीन है, दिस इज आवर डेस्कटॉप, और यू कैन से दिस इज द वॉलपेपर. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ लेबल पिक्चर्स ऑन इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. सो मैंने जैसा आपको बताया, जो पहली स्क्रीन आती है जिसमें लेबल्ड कई पिक्चर्स हैं लेफ्ट साइड में, उस पहली स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं. एंड इट इज जस्ट लाइक योर स्टडी टेबल. डेस्कटॉप जो है हमारे स्टडी टेबल की तरह होता है, वेयर जहां पे हम यूजफुल चीजों को आसानी से रख सकते हैं. एंड फ्रीक्वेंटली यूज थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, नोटबुक एक्सेट्रा. तो ये चीजें जैसे हम अपने टेबल पे रखते हैं, वैसे डेस्कटॉप पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम आसानी से रख सकते हैं. इट इज द सेम वे अ कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कंटेन्स ऑल द यूजफुल एंड फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम. सो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हम बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोग्राम्स रख सकते हैं. द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ आइकन एंड टास्कबार. डेस्कटॉप में आइकन्स और टास्कबार होता है, मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताया. सो लेट्स रीड अबाउट द आइकन्स. हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ आइकन्स. टू आइकन्स आर हियर. द स्मॉल लेबल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर आइकन. छोटे छोटे जो पिक्चर बने होते हैं लेफ्ट साइड में, उन्हें आइकन कहते हैं. और इट कैन रिप्रेजेंट अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम. तो या तो ये फाइल हो सकते हैं, या कोई फोल्डर हो सकता है, या फिर किसी प्रोग्राम को हम वहां पे पेस्ट कर सकते हैं. आइकन्स आर यूज्ड टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स. टू ओपन एन आइकन, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. सो किसी भी आइकन को अगर हमें ओपन करना है तो क्या करना है, उसमें हमें
डबल क्लिक करना है। सो जैसे हमने उस आइकन पे डबल क्लिक किया तो क्या होगा, वो आइकन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज फाइल। एनी वर्क यू डू ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ फाइल। सो कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं वो फाइल, दिस द फर्स्ट पिक्चर इज योर फाइल। फाइल ऐसे दिखती है, ये W लिखा है, इसका मतलब ये एक वर्ड फाइल है। सो फाइल क्या है, कोई भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइल, एंड अ फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल के अंदर बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ईच फाइल हैज अ डिफरेंट नेम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट आइकन। तो जितनी भी फाइल्स होती हैं सबका एक अलग तरीके का नेम होता है और सबको एक अलग आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज अ फोल्डर। Here this is a picture of our folder. ये येलो कलर का होता है एंड फोल्डर्स एक जैसे दिखाई देते हैं। फोल्डर इज जस्ट लाइक अ बैगी बैग की तरह होते हैं एंड यूज टू स्टोर द ग्रुप ऑफ फाइल। बहुत सारी फाइल्स को हम फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि ये बैग की तरीके से काम करता है, तो इन फाइल्स को हम फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज योर वर्क बाय कीपिंग सिमिलर फाइल्स इन वन फोल्डर। सो अगर हमें काम को इजी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके की फाइल्स को एक फोल्डर में डाल सकते हैं, दूसरे तरीके की फाइल्स को दूसरे फोल्डर में डाल के वहां पे एक नाम लिख सकते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर दिस पीसी एंड द रिसाइकल बिन। कुछ आइकन्स ऐसे हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं डेस्कटॉप पे, वो हैं दिस पीसी एंड रिसाइकल बिन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइकन है। Now let's read about this PC. This PC के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर बन रही है, कंप्यूटर टाइप बन रहा है। तो जब भी आपको ऐसा आइकन दिखे आपके डेस्कटॉप पे, दिस मीन्स ये आपका दिस PC का आइकन है। The computer stores the data in hardware, hard disk, CD, DVD, pen drive or any other storage devices can be accessed from the icon this PC. So कंप्यूटर की जो भी डेटा है वो उसके हार्ड डिस्क में रहता है या फिर CD, DVD या पेन ड्राइव में रहता है या कोई भी और अदर डिवाइस हो, तो वो सारी डिवाइसेस हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं दिस पीसी के अंदर। When you double click on this icon, you will get the this PC window like this. So जब हम this PC आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो हमारे सामने खुली है, ये this PC की विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी और हम यहाँ से देख सकते हैं किस चीज में कितनी स्पेस ज्यादा भरी हुई है या खाली है, कौन कौन से ड्राइव है उसमें कितनी कितनी स्पेस है। द डिफरेंट आइकन्स कैन बी सीन विद द कंप्यूटर विंडो। सो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये आइकन्स है, ये जो ड्राइव्स हैं, ये हमें दिखेंगे और इसमें हम बता सकते हैं कि किसमें कितनी स्पेस है। द आइकन शो द स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन कॉल्ड पार्टीशन। सो ये जो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड हैं, जितने भी यहाँ पे हार्ड डिस्क लगे हुए हैं उन्हें पार्टीशन कहते हैं। दे आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर CDEF। सो इन्हें यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। इसके अलावा भी आपने अगर अलग से और भी कुछ डाल रखा है तो आप उसको भी F ड्राइव या किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इन ड्राइव्स के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आइकन इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन इन योर हाउस। सो जैसे हम अपने घर में डस्टबिन का यूज करते हैं, जो भी कूड़ा होता है वो हम सब डस्टबिन में डालते हैं, वैसे रिसाइकल बिन है यहाँ पे, जिसमें हम जो भी गार्बेज है, जो फाइल्स हमें नहीं चाहिए उसे हम रिसाइकल बिन में डाल सकते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ रिसाइकल बिन। इफ यू डिलीट एनी फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक, गलती से अगर मान लो हमसे कोई चीज डिलीट हो गई, सो क्या कर सकते हैं, हम उसे रिसाइकल बिन में जाके वापस से वहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हियर दिस इज अ रिसाइकल बिन। अब ये न्यू फोल्डर वाली जो फोल्डर है वो हमसे गलती से डिलीट हो गई है, तो हम गए रिसाइकल बिन में, हमने क्लिक किया और वहां पे जाके उस पे राइट क्लिक किया एंड देन राइट क्लिक पे करते ही ये वाली डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल गई, जिसमें से हमने रिस्टोर बटन पे क्लिक किया। तो क्या होगा, जो भी फाइल हमने डिलीट की थी, मान लो उसे हमने माई कंप्यूटर से डिलीट की थी, तो वापस वो माई कंप्यूटर में जाके पहुंच जाएगी, मींस रिसाइकल बिन से गायब हो जाएगी और जहां से हमने डिलीट की थी वहीं जाके वो स्टोर हो जाएगी। रिसाइकल बिन में वही आइटम रहते हैं जो हमने परमानेंटली डिलीट नहीं किए। नेक्स्ट इज आवर टास्क बार।
The taskbar is a long horizontal bar normally placed at the bottom of the desktop. So ये हमारा जो desktop है इसके नीचे ये जो black line दिख रही है, this is our taskbar. So यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा view दिख रहा है आपको आपकी बुक में taskbar का. You can move the taskbar to any of the four sides of the screen. So ये हमारा जो screen है इसके down या फिर up या फिर लेफ्ट या फिर राइट, चारों डायरेक्शन में से कहीं पे भी हम टास्क बार को ले जा सकते हैं, वहां पे उसे प्लेस कर सकते हैं. स्टार्ट बटन, हियर दिस द फर्स्ट बटन हियर इज स्टार्ट बटन. ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे बड़ा व्यू दिख रहा है. सबसे पहला बटन जो टास्क बार पे है वो स्टार्ट बटन है और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे क्या होगा, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ऑफ प्रोग्राम्स, जो ये जो लिस्ट है ये सारी लिस्ट खुल जाएगी जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया. तो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में वो सारे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. इट इज अ की टू ऑल द प्रोग्राम्स एंड विंडोज. जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी विंडोज हैं, वो सारे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. द स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विंडोज 7 एंड 8. सो विंडोज 7 और 8 को मिला के ही विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू बनाया हुआ है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडोज 10 start menu, the middle section shows the most used and most recent added apps and programs. You can also find File Explorer setting and perform common tasks like starting a program, shutting down a computer, searching a file or a folder, etc. So जो start button है वो दो parts में divided होता है, left pane and right pane. So यहाँ पे आप जो है स्टार्ट बटन में क्या क्या चीजें देख सकते हैं. यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोरर भी खोल सकते हो या फिर सेटिंग्स को भी आप ढूंढ सकते हैं. बहुत सारे यहाँ पे एप्स या टास्क है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी. टू शो ऑल द एप्स इंस्टॉल इन द सिस्टम सिलेक्ट द ऑल ऑफ एप्स. सो आप जैसे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आता है हमारा ऑल एप्स ऑप्शन. तो अगर आप चाहते हो कि जितने भी एप्स हैं, जो भी एप्स इस कंप्यूटर में है वो सारे आपको देखने हैं तो आपको ऑल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. ऑल द इंस्टॉल्ड एप्स और प्रोग्राम्स आर शोन हियर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो जितने भी एप्स होंगे कंप्यूटर में वो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके सामने आ जाएंगे. पहले ए आएगा, देन बी, देन सी, डी, ई, पूरे जेड तक वो सारे प्रोग्राम्स आपके सामने होंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Whereas the right side of the start menu will have Windows 10 type. लेकिन जो राइट साइड है हमारे स्टार्ट बटन का वहां पे विंडो 10 की टाइल्स दिखेंगी आपको. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल एट अ ग्लांस विदाउट ओपनिंग द फाइल. सो जैसे हम इन टाइल्स को देखेंगे हम बिना इन्हें ओपन किए बता देंगे कि ये टाइल किस चीज के बारे में. सो बाय दिस वे इट इज वेरी हेल्पफुल. विदाउट ओपनिंग कोई भी फाइल हम उसे जो है इजिली देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेदर टाइल डिस्प्लेज द वेदर forecast and the news tile will display the news headlines. You can rearrange, resize and move these tiles to make them work better for you. So हम इन tiles को rearrange भी कर सकते हैं, resize कर सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं और insert भी कर सकते हैं. You can also press the window key on the keyboard to open start menu. Start menu को open करने के लिए हम window key को भी press कर सकते हैं keyboard के ऊपर. Next is our search button. The search box is used to search the program or apps on the computer quickly. So कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम ऐप हो या फिर प्रोग्राम हो उसे इजीली सर्च करने के लिए हम सर्च बॉक्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू ओपन वर्डपैड यू कैन टाइप द वर्डपैड इन द सर्च बॉक्स. सो सर्च बॉक्स में हमने वर्डपैड टाइप किया एंड हियर वी कैन सी वर्डपैड हमारे सामने है. फ्रॉम देयर वी कैन सर्च इट. सो दिस इज द यूज ऑफ सर्च बॉक्स. नेक्स्ट इज आवर टास्क व्यू बटन. Here, this is the logo of task view button. ऐसा आपको आपके कंप्यूटर में दिखेगा. So this is a task view button. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? It is present on the right side of the search box. Search box right side में होता है. And it is quick. It is a quick way to see every window on the desktop at once. So window पे जितने भी desktop पे जितने भी window हैं उसे हम easily task view button की मदद से देख सकते हैं. And then quickly select the one you want to open. जो भी हमें ओपन करना है, जिस पे भी हमें वर्क करना है उसको इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. टू एक्टिव द टास्क व्यू बटन प्रेस द विंडो प्लस टैब की टुगेदर. सो टास्क व्यू बटन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है? विंडो के साथ टैब की प्रेस करना है.
जिससे टास्क भी बटन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स आवर नोटिफिकेशन एरिया। इट इज प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। सो टास्क बार का जो राइट कॉर्नर है वहां पे हमारा नोटिफिकेशन एरिया है एंड इट हैज क्लॉक एंड सम स्मॉल आइकन। सो इसमें क्लॉक, डेट एंड टाइम और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। It tells the status and important notifications about the programs running on your computer. So कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, नोटिफिकेशन एरिया हमें उसके बारे में बताता है। At the end of the notification area there is a peak button. जहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन एरिया खत्म होता है उसके जस्ट बगल में एक पीक बटन है। क्या काम है उसका? When you click on this button, it minimizes all the open windows and shows the desktop. So पहले हम Windows 7 जब हमारे पास था तो वहां पे से शो डेस्कटॉप बटन नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया Windows 10 में, इसका नाम हो गया है पीक बटन। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे क्या होगा? डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन है सारे छुप जाएंगे और हमें डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा। You can also minimize the open window by pressing the window plus D key. सो विंडो के साथ डी की अगर हमने प्रेस किया तो हम जितने भी ओपन विंडो है सबको मिनिमाइज कर सकते हैं। चिल्ड्रन, टू मूव द टास्क बार वी कैन फॉलो द स्टेप्स आर गिवन हियर। प्रीवियसली वी सॉ, हमने देखा था कि टास्क बार हमारा नीचे होता है मेनली, बट इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि टास्क बार हमारे विंडो के राइट साइड में चला गया है। कैसे करना है? वी हैव टू क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द टास्क बार। टास्क बार पे ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है एंड देन ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द प्लेस ऑन द स्क्रीन वेयर यू वांट टू मूव द टास्क बार। सो सिंपली कुछ नहीं करना है, ब्लैंक एरिया पे हमारे माउस को प्रेस करके रखना है और उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके हम आ गए, जिसकी वजह से टास्क बार की पोजीशन चेंज हो गई। सो यू वांट टू द टास्क बार टू बी पोजीशन वर्टिकली ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। सो वर्टिकली यहाँ पे हमारे अपना टास्क बार दिखाई दे रहा है। After you move the mouse pointer to the position of your screen where you want the taskbar, release the mouse button. So हमने जो प्रॉपर पोजीशन पे हम अपना टास्कबार लगा चुके हैं, इसके बाद हम माउस के बटन को छोड़ सकते हैं। The taskbar will be moved to the desired position, पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें अपना टास्कबार को पोजीशन हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, the taskbar is not moving, इसका मतलब वो लॉक है और उसको अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा? राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। टास्क बार का जो ब्लैंक एरिया है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। अब इसमें आप देख सकते हो सबसे नीचे लिखा है लॉक द टास्क बार, उस पर टिक लगा हुआ है। सो इस टिक को हम एक बार क्लिक करेंगे तो टिक हट जाएगा, इसका मतलब कि हमारा टास्क बार जो अनलॉक हो गया और हम उसे आसानी से अब यहाँ से मूव कर सकते हैं। सो दिस वाज अ प्रोसीजर ऑफ moving the taskbar and also unlocking the task. Now let's quickly come to the recall time. An operating system is a set of programs which manages all the jobs of a computer and makes it run, and it tells a computer how to work. Without an operating system, computer is of no use. Even we cannot start a computer and cannot work on it. Some of the examples of operating system are Microsoft Windows, Linux and Mac OS. Windows 11 is the latest version of Windows. The recycle bin icon is just like a bin in your house. To keep the file or a folder, you delete till you empty it. Our taskbar is a long horizontal bar, normally placed at the bottom of the desktop. The start button appears at the leftmost corner of the taskbar. So जो start button है वो leftmost corner पे आता है taskbar के। When you click on start button, the list of options or programs called start menu appear. So start menu हमारे सामने आ जाता है। The search box is used to search a program or app on a computer quickly. Now let's quickly come to the book exercise, children. Here, which of the following is the latest version of Windows operating system? So the latest version of Windows operating system is Windows 11. Next question, children. The dash appears at the leftmost corner of the taskbar. Taskbar के leftmost corner में क्या होता है?
It is a start button. The dash icon keeps the file or a folder you deleted till you empty it. So कौन सा आइकन है? वो फाइल और फोल्डर को रखे रहता है जब तक हम उसे पूरी तरह से डिलीट नहीं कर देते. So it is a recycle bin. A dash is a collection of data. So what is a collection of data? A file is a collection of data. Next, Windows 10 is a new search has a new search tool. एक नया search tool है Windows 10 में. And what is that? It is Cortana. Write it down, children. A dash is used to store a group of files. Group of file को store करने के लिए हम क्या use करते हैं? It is folder. To show all the apps installed in the system. System में जितने भी ऐप हैं सबको दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? We select the dash option. All apps option. At the end of the notification area, there is a dash button. So it has a peek button. So children, these were the answers to the filler. Now let's come to the next exercise. Write true or false. An operating system tells a computer how to work. Operating system के computer को बताते हैं कैसे काम करना है. Yes, this is true. You cannot move the taskbar to any of the four sides of the screen. अभी तो हमने किया था. Yes, this is false. We can move it. The search but box is used to search a program or app in the computer quickly. Yes, true. And to open any icon, just single click on it. No, this is false. We have to do double click. Next, who am I? Without me, computer is of no use. Even you cannot start a computer and cannot work on it. So किसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, वो वर्क ही नहीं करेगा, वो स्टार्ट भी नहीं होगा. Yes, the correct answer is operating system. Write it down, children. Operating system. Next, I am one of the most popular operating system based on GUI. So GUI पे डिपेंड करता हुआ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट पॉपुलर है. Yes, it is Microsoft Windows. It is Microsoft Windows. I am present to the right side of the search box. So search box के right side में क्या present होता है? It is our task view button. Write it down. Task view button. I am present at the right corner of the taskbar. Corner के right corner, taskbar के right corner में हूँ. And I have a clock and some small icon. छोटे छोटे icons है मेरे पास और clock भी है. So it is our notification area. Write it down. Notification area. So these are the answers of who am I, children. I hope you have understood all these. Now let's move on to the next exercise. So here our next exercise is question and answers. So the first question here is, what is an operating system? So operating system is a set of programs designed to run a computer. So this is called our operating system. Now write any two features of Windows 10. So Windows 10, the two features of Windows 10 are, Windows 10 is made with the combination of Windows 7 and 8, and the second feature is that it has a task view button through which we can see all the recently opened folders that we have opened. So we can see all those from the task view button. Another feature I can tell you is that it has a new built-in Cortana feature through which we can get or we can talk or get information related to Windows. Now, the next question is, define desktop. So a desktop
is the first screen that we get after the operating system gets loaded. After the welcome screen, the first screen that comes in front of us is our desktop. What are icons? Icons are small label pictures on our computer desktop screen. So these are the small icons, and the two examples of icons are you can say recycle bin and my computer or this PC option. What do you mean by taskbar? Taskbar is a long horizontal bar present at the bottom of the screen of the desktop. It is the long horizontal bar present at the bottom of the desktop, and it has many options such as start button, task view button, Cortana, notification area. So these all are included in a taskbar. So children, I hope you have understood the chapter very well, Windows 10, and you have to practice, you have to learn the chapter thoroughly and practice more and more. Questions and related information you have to find out. So this was all for today, and I'll be waiting for you in the next video with a new chapter. Till then, stay.